کرنے کے لیے ہماری ننھی پری جنت عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہے۔ The light of knowledge in rural areas. Apart from big cities, from the services of prominent educationists, Mr. Qazi Zahoor Haq is a reflection of his vision, while Malik Shahid Awan, a well-known journalist and columnist and a person who loves education, has taken this heavy responsibility and has chosen a remote village which is educationally backward, especially for girls. Educational issues are very high. In this regard, Qazi Air Marshal Noor Khan Campus is established to offer its services for the provision of quality education and facilities like major educational institutions for the children of the area. We are requesting the authorities of this area to support us for the promotion of this school. Thank you. جو شمع اس کے علم وائب گرا کے بیلم فتوام خدارہ شناف. سب سے پہلے میں قاضی ظہور حق صاحب، طاہر محمود صاحب جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، سر سید ایجوکیشنل فاؤنڈیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں،
میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ملک شاہد صاحب کو میرا نام تجویز کیا اس ادارے کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اس ادارے کو پروموشن دینے کے لیے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتی۔ کچھ اسی ارادوں کو، کچھ اسی ویژنس کو اور کچھ ایسے مشنس کو لے کر تشریف لائے ہیں اور اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ پروموشن دینے والے آپ لوگ ہیں جو کہ یہاں کے علاقائی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویژن کو، ہمارے ٹیم آف اسٹڈی کو، ہمارے جو ایجوکیشنل اور تدریسی طریقہ تدریس ہے اس سے آپ لوگ کافی متاثر ہوں گے۔ سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن آف پاکستان اور سر سید اسکول آف ایکسیلنس یہ کسی بھی نام کا محتاج نہیں ہے۔ قاضی ظہور الحق صاحب نے اور پاکستان اس کی بہت سی برانچز قائم کی ہیں جو کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بہت اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا سلیبس، ہمارا سلیبس بھی کافی زیادہ لو ہے، اتنا ہیوی نہیں ہے، اتنا بچے کو پریشرائز نہیں کیا جاتا، اس کے انڈیویجول ڈفرینسز کو سمجھا جاتا ہے کہ ہر بچہ انفرادی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اور اسی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشاں ہیں کہ بچے کے ساتھ ہم اسی طریقے سے پیش آئیں جیسے کہ اس کے گھر والے چاہتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں جو اس علاقے کے لوگ ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ جو یہاں پہ گیسٹ ہمارے آئے وہ سب ہمیں بیسٹ وشز دیں اور ہمارے لیے دعا ہو رہے ہیں کہ ہم اس ادارے کو لے کر کافی آگے تک جا سکیں۔ اوکے ناؤ لیٹس ریکال now I am called upon the president of the Sir Syed Education Foundation of Pakistan. So please come on the stage, Sir Tahir Mahmood Durrani, to give a big applause for Sir Tahir Mahmood Durrani that come on the stage and اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں۔ قاضی ظہور الحق صاحب، پروجیکٹ ڈائریکٹر سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن آف پاکستان، برادر محترم فاروق صاحب جو علم و ادب اور فروغ تعلیم کے حوالے سے حسن ابدال کا سب سے مستند نام، میرے ساتھ تشریف فرما ہیں برادر نثار صاحب جو علمی، ادبی اور سماجی حلقوں میں بہت معتبر نام ہے ان کا بھی، برادر چودھری وقار صاحب یہ بھی ہمارے کارواں میں شامل ہو رہے ہیں، سابق کو ہیں، اب آپ انہیں ایجوکیشنس کے نام سے بھی معصوم کرنے جا رہے ہیں، اگلے 2-4 دن کی بات ہے۔ شاہد اوان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور علم و ادب کے حوالے سے بڑا ان کا لگاؤ رہا ہے، میرے لیے بہت ہی محترم ہے۔ اس کے علاوہ امادین شاعر میری بہنیں، بیٹیوں اور عزیز طلباء طالبات، آپ سب کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ صرف 2 باتیں سر سید کے جو مشن ہے اس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی روایتی اسکولنگ نہیں ہے، اسکول جگہ جگہ کھل رہے ہیں اور کھلتے بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے جس کو کوئی کام نہ آتا ہو وہ اسکول کھول کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم جس بندے کو فرنچائز دیتے ہیں اس کا بھائی بیٹا آپ کے سامنے ہے، شاہد اوان صاحب پورا حسن ابدال جانتا ہے، پورا سراؤنڈنگ جانتا ہے، علم و ادب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، یہ پہلے بھی اسکولنگ کر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی یہ گرانٹ کی خواہش تھی، پچھلے سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی گرانٹ چھوٹی دی جائے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ حسن ابدال میں جہاں آلریڈی ایک کیمپس چل رہا ہو تو دوسرا وہ ہم نہیں دے سکتے، تو یہ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ جگہ ٹیکنیکلی جو ہے اس میں ٹیکسلا میں آتی ہے، لیکن عملاً 99% جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ حسن ابدال سے۔ تو یہ چھوٹا کیمپس جو ہے ہمارا پی جی سے لے کے 5th تک ان کو الاٹ کیا گیا ہے۔ میں فاؤنڈیشن کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا ایجوکیشن نیٹ ورک ہے، اس میں بڑی بڑی جو یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، HODs وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 16 لوگ ایسے ہمارے بورڈ آف گورنر میں ہیں جو علم و ادب کے حوالے سے انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے، اور شاہد صاحب چونکہ ہمارے کلوز ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں،
इसी से इनका भी दोबारा फिर शगफ क्रिएट हुआ कि मुझे भी इनके साथ इस टीम के साथ काम करना चाहिए। काजी ज़रूल हक साहब न सिर्फ अटक पिंडी रावलपिंडी डिवीजन नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मुस्तनद नाम है इल्म व अदब के हवाले से, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हमारी ये खुशनसीबी कि काजी साहब एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर तमाम फाउंडेशन के मामला देखते हैं और सर सैयद अहमद खान के जो पड़पोते हैं वो हमारे चीफ पैटर्न हैं। इस तरह मैं थोड़ी सी 2 मिनट और आपके लेना चाहूँगा, 2 मिनट पीछे चले जाते हैं। ये सफ़र हमने शुरू किया को आज नहीं, बरसाती तौर पे नहीं, ये 2000 से सफ़र शुरू हुआ, अब 2024 आ गई है। 24 साल एक जोद मुसलसल का नाम है। हमने दिन रात एक काम किया। इसी तरह जिस तरह आप बैठे हुए एक नन्हा सा पौधा हम लगा रहे हैं, अब वो पौधा लगाते लगाते अब इस चेन में 27 आज जिस ब्रांच का अफ्ताह हो रहा है ये 27वीं ब्रांच है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह कमों के 6000 बच्चा इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो ये दूर नहीं है, हमारी सरपरस्ती भी होगी, मैं भी यहाँ आया करूँगा, काजी साहब भी आएंगे, दिन रात हम इसको टाइम भी देंगे। शाहिद साहब खुद बड़े मुतारक आदमी हैं। प्रिंसिपल जो हमारी अलाइड की ये वाइस प्रिंसिपल थी, वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप वहाँ चले जाएँ, ये हमारा इदारा है, आप जैसे बंदे को इस इदारे की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला ये इदारा दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप लोग इसके साथ तामल फरमाएं। ये कोई नया नाम नहीं है, कोई नया आज साथी तौर पर नहीं खोल के आ रहा है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है, जिसके साथ आप तामल करें और 5वीं तक यहाँ होगा। इससे ऊपर अगर आपके जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं तो वो 6th 7th इवन 9th 10th और कॉलेज में भी अगर आना चाह रहे हैं तो हमारा जो मेन कैंपस है जो हैदराबाद रोड के सामने है, वहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला नए सेशन से वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी ऑपरेटेड हो जाएगा। तो इल्म अदब के हवाले से पीजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, मास्टर लेवल तक हम वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बाहर या अटक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ वन विंडो ऑपरेशन उनके तहत आपको मिलेंगी। हमारा इदारा फेडरल बोर्ड के साथ एफिलेटेड है, एग्जामिनेशन सेंटर भी वहीं पे है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द यूनिवर्सिटी का कैंपस भी यहाँ आ जाएगा। तो ये वो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक शहरी के लिए चाहिए थी हसन अब्दाल के अलियान हसन अब्दाल के लिए, ये मैं समझता हूँ कि सैयद अहमद मसूद साहब जो हमारे चीफ पैटर्न हैं उनकी बड़ी इसमें डिवोशन है, मोहब्बत है और वो हमारी सरपरस्ती कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम आता है वो चीज़ हम करते हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू। सिस्टम के CEO जनाब फारूक अहमद साहब थे कि वो आएँ और अपने ख्यालात बयान करें। आपने ट्रेंड स्कूल का नाम सुना हुआ है, हज़ारा रोड के ऊपर है और बहुत बड़ा स्कूल सिस्टम है माशाल्लाह उनका। उनसे मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और हमारा बहुत पुराना साथ है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने ख्यालात बयान करें। जनाब अल्लाह मुबारक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारक अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काजी ज़रूल हक साहब मेरे उस्ताद भी हैं और इनकी इजाज़त से मैं आपके सामने चंद बातें भी इंशाल्लाह करूँगा। तैयब दुरानी साहब, मलक निसार साहब, शायद अमान भाई, ख्वातीन, बाकी हाज़रीन, चौधरी वक़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शाहिद भाई को और इनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हसन अब्दाल छोड़कर इस इलाके में आकर एक इदारे का क़याम अमल में लाया और नेक ख्वाहिशात भी हैं और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाए। और अपने घर के नज़दीक तो काम करना बहुत आसान है दुरानी साहब। मैं भी हसन अब्दाल में काम कर रहा हूँ, आप भी हसन अब्दाल में काम कर रहे हैं। उधर आके काम करना आसान होता है, लेकिन दूसरे इलाके में आके दूसरे लोगों को अपना समझते हुए, उन बच्चों का अपना समझते हुए जिस वक्त वहाँ पर जाकर इंसान काम करता है तो असल खिदमत ये होती है।
और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि शाहिद भाई का जिस तरीके से बैकग्राउंड है एजुकेशन से, जो हमारी हसन अब्दाल की एसोसिएशन थी वहाँ पर सरपरस्त की हैसियत से हमें भी गाइड करते रहे, तो ये अपने इदारे में क्यों नहीं इंशाल्लाह काम करेंगे। और हम तवक्को करते हैं कि आप लोगों का तावन किस अंदाज में चाहिए, तो तावन इस अंदाज में चाहिए कि आप इदारे में तशरीफ़ लाया करें, इनसे मुलाकात करें, अपने बच्चों के हवाले से इनसे डिस्कशन करें, और जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं वो बैठ कर टेबल के अंदर जिस वक्त शेयर की जाएंगी तो आपके बच्चों की इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आपके बच्चों की कामयाबी शाहिद साहब की कामयाबी है, और शाहिद साहब की कामयाबी मैं समझता हूँ कि हमारे हसन अब्दाल की कामयाबी है। तो मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इदारा दिन दुगनी रात चुगनी इंशाल्लाह एफर्ट भी करेगा और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अदा करेगा। बहुत शुक्रिया। मौसम ने जो है वो हमारे प्रोग्राम को कुछ ख़राब किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे के बाद अच्छी खूबसूरत बारिश हुई है और बड़ा अच्छा मौसम है। तो हमने तो बड़ा एंजॉय किया। हम सुबह 7 बजे के आए हुए थे, लेकिन शायद लोग गवान वालों को, गोलियाँ वालों को जो है सर्दी ज़्यादा लगती है। मर्द हज़रात को मौजूद किया था लेकिन वो तशरीफ़ नहीं ला सके। बाहर ख़वातीन आई हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हुई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो यहाँ पे मौजूद है और हमारा मैसेज जो है वो इंशाल्लाह इस पूरे गांव में जाएगा। तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मेरा बहुत ही अजीज़ जो है वो वक़ार अहमद जो है वो बहुत ही, इनके वालिद साहब चौधरी जमशेद अख्तर को सारी जो है सरफदार पिंडी टैक्सला सारे लोग जानते हैं, उनके साहबजादे हैं। उन्होंने भी सुकून की इंशाअल्लाह ताला अभी शुरू करने वाले हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि उन चंद अल्फाज मेरे लिए मेरे स्कूल के बारे में कहें। मुबारकबाद। और मैं स्पेशल आज इसीलिए आया हूँ कि मुबारकबाद पेश करूँ। शायद दुरानी साहब, कायद साहब, ये सारे मेरे लिए मोहतरम हैं और मैं स्पीचेस असल इतनी करता नहीं, लेकिन आज शायद भाई की मोहब्बत में कर रहा हूँ, वरना तो हम लिखने वाले ही हैं। तो स्कूलिंग के हवाले से मैं भी इसी फील्ड में आ रहा हूँ और शायद भाई को देख के ही आ रहा हूँ इंशाल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह शायद भाई की तरक्की हो और दुरानी साहब इनकी सरपरस्ती की बात है, इनके इतने अच्छे सेटअप चल रहे हैं, मैं वहाँ जाता रहता हूँ। और एजुकेशन के हवाले से इसमें कोई शक नहीं कि जितनी उन्होंने खिदमत की है कुछ अरसे में, वो एक बहुत अच्छा नाम उन्होंने इलाके में कायम किया है। तो मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ शायद भाई को, मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आज इस महफिल में हमारे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई मलिक निसार अमान साहब तशरीफ़ लाए हैं और गुजरात से तशरीफ़ लाए। इतनी दूर से वहाँ गए, लेकिन वहाँ गार्डन वाले और यहाँ पे उनको मैंने मजबूर किया था, लेकिन आज मैं गिला करूँगा सबसे कि आपको इतनी सर्दी लग गई है कि यहाँ तशरीफ़ नहीं लगी, मेरी बहनें बेटियाँ बैठी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं गुजारिश करूँगा मलिक निसार अमान साहब से कि वो भी अपने ख्यालात के साथ और दुरानी साहब, शाहिद अवान साहब और मेरी बहनों बेटियों, ये शोबा ऐसा है अल्लाह ताला ने इन कुछ नसीबों को चुना है इस काम के लिए। इसमें रोज़गार भी है और दीनी तालीम भी है और दुनियावी तालीम भी है, इसमें दुनिया भी है और आखिरत भी है। और ये खुश नसीब लोग हैं जो ये काम करते हैं। अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर इनको दुनिया में चुना है और आखिरत में इनाम भी है इनके लिए। हम लोग भी कारोबार करते हैं, अपना अपना तरीका। अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम चलाना है, किसी को किस लैंड पे छोड़ा, किसी को किस लैंड पर। और हमारी खुशनसीबी है, शायद भाई कह रहे हैं ये बाजार से आए हैं, तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है। आप इतनी अच्छी महफिल में हमें इनवाइट करते हैं, तो ये आपका ज़र्फ है। आप हमें बुलाते हैं तो हम इंशाल्लाह क्यों ना है, आप जहाँ भी हमें बुलाएंगे, जिस वक्त बुलाएंगे, जो भी खिदमत होगी हमारे लायक, हम इंशाल्लाह हर वक्त हाजिर हैं। और ख़ासकर इस टीम के लिए दुरानी साहब है, काजी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, बहुत मोहतरम है और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इसमें हमारे लोगों से इसमें हिस्सा डालते हैं तो हम क्यों न डालें। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इदारे को, जो ये इदारा इतना अच्छा काम कर रहा है। और इन लोगों ने एक आके पौधा आपके इस इलाके में लगाया है। अब इसमें पानी डालना, इसकी परवरिश करना, आप
लोगों का काम है, वो इस तरीके से करेंगे कि जैसे आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें तालीम के लिए, बच्चे आपके आएंगे तो इसको ये समझे कि इसको खाद और पानी डलेगा, तो ये फिर तनावर दरख्त बन जाएगा। और ये पौधा इन्होंने लगा दिया है, अब आप लोगों का काम है, हल्के के लोगों का, कि इसकी परवरिश करें और इसमें पानी डालें, खाद डालें। ये पानी खाद आपके बच्चे यहाँ पे आएंगे, पढ़ेंगे, तो अल्लाह करेगा कि ये तनावर दरख्त बनेगा, इसी से अच्छे अच्छे फल आएंगे। तो ये बात के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा मेरे दारे इज़्ज़तों के लायक जनाब काजी ज़हूर हक साहब, माहिर तालीम, साबिक़ CEO रावलपिंडी डिवीज़न, जनाब ताहिर दुरानी साहब, सदर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, जनाब बिरादरम निसार अवान साहब, जनाब फारूक अहमद साहब, जनाब चौधरी वक़ार अहमद और गांव के मेरे बुजुर्ग दोस्त, मेरी बहनें और बेटियाँ। आज हमने फंक्शन, वो पता था कि बारिश होनी है, लेकिन हमने तो सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच चुके थे और हमने बड़ा एंजॉय भी किया। बहुत तेज़ बारिश हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई है। हमने आज फंक्शन इसलिए कि आज बिस्मिल्लाह तो हम कर चुके थे, 2 फरवरी को हमने यहाँ पे खत्म कुरान और मिलाद शरीफ करवा के ख़वातीन का, लेकिन आज मेरा दिल था कि मर्द हज़रात भी तशरीफ़ लाते थे, लेकिन पता नहीं किन वजूहात की वजह पे, बारिश की वजह से शायद उनकी ज़्यादा तादाद नहीं आ सकी। बहरहाल जो भी आए हैं, जो मेरी बहनें और बेटियां बैठी हैं, ये मैसेज हमारा ले के जाएंगे। दरअसल मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है। मैं भी जो बचपन में बच्चे को बात सिखाई जाती है, जो वो सुनता है, उसकी याददाश्त में रह जाती है। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे वालिद साहब अपने कंधे पे बिठा के, तकरीबन हमारी ढोक जो थी 3 किलोमीटर गांव से दूर थी, तो वहाँ से मुझे अपने कंधे पे बिठा के मुझे जब स्कूल में लाया गया था, तो मुझे आज वो दिन याद आ रहा है। आज बच्चे जो है वो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, इनके लिए बड़ी फैसिलिटीज़ हैं कि इनके पास मोटरसाइकिल है, इनके अबू के पास गाड़ियाँ हैं, दीगर सहूलतें हैं। मैंने वहाँ से 3 किलोमीटर रोज़ाना पैदल आया करता था स्कूल में। छोटा बच्चा कितनी उम्र का होता है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और 3 किलोमीटर वापस घर जाता था। फिर इसी तरह जब मैंने 5वीं जमात शुरू की तो वो हमारे गांव से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर था, तो रोज़ाना मुझे 12 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलना पड़ता था। मैं पैदल जो है 30 से लेकर 10वीं तक जो है वो पैदल जाते रहे। दरम्यान में फिर साइकिल भी आ गया, लेकिन मुझे पैदल चलना और पैदल सफ़र करना उस दिन से मैंने सीखा हुआ है। ज़मीन पे पैदल चलना, अल्लाह ने जो हमें टांगे दी हैं, पाँव दी हैं, ये चलने के लिए है। तो मेरी जो है वो हमेशा से ये आदत रही है कि मैं पैदल चलने की ज़्यादा करता हूँ। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि उन्हें किसी ने पूछा कि आप ज़्यादातर ज़मीन के ऊपर बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन से इंसान गिरता नहीं। तो हम ज़मीन पे बैठने वाले लोग हैं, कांटों पे बैठ के पढ़ा है। फिर इसी तरीके से बड़ी मुश्किल हालात में एजुकेशन हासिल की है। हसन अब्दाल में मेरे 40-45 साल हो चुके हैं। हसन अब्दाल का बच्चा मुझे जानता है। अपने गांव के तो बहुत कम लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी हसन अब्दाल में गुजर गई है। हसन अब्दाल में मैंने हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह 90s में मैंने चौथा स्कूल था, प्राइवेट स्कूल जब हमने बनाया इकरा पब्लिक स्कूल, तो हमारा चौथा प्राइवेट सेक्टर में था। फिर बाद में मैं अखबार के साथ मुंसलिक हो गया, अखबार के साथ लोगों की खिदमत करता रहा। फिर दरम्यान में गैप आ गए, सहाफ़त की ज़्यादा तवज्जो हो गई, तो इस वजह से जो है वो मैं टाइम ना दे सका और स्कूल हमने बंद कर दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कोशिश की थी कि वो मेरी बेटियाँ आ जाती। 2 बेटियाँ अभी हाल ही में उन्होंने डॉक्टर बनी है, हमारे स्कूल की बड़ी बेटियाँ जो, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर मुझे चूँकि ये टोक अवान, एक तो मेरा अवान कबीला है, मैं तो मुझे अवानों से वैसे ही प्यार है,
तो गवान पे मेरा स्कूल खोलने का मकसद ये था कि ये हमारा खूबसूरत इलाका है। मैं यहाँ मलिक इम्तियाज़ साहब, उनके भाई आए हैं मलिक इम्तियाज़ साहब, मैं उनके पास आया करता था। हमारी जवानी थी, वो भी जवान थे, वो बाहर चले गए, फिर उनके साथ रब्ता रहता था। तो मैंने यहाँ पे अक्सर आया करता था। इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट, पीछे बाग और पानी, तो इन चीज़ों के लिए मैं आया करता था हर इतवार को या जो भी टाइम मिलता। फिर अभी जो हाल ही में मैंने सोचा कि जो गाँव के बच्चे हैं उनका भी यही हक बनता है कि उनको तालीम दी जाए, उनकी तरबियत की जाए। तो उस सिलसिले में मैं जनाब मेरे भाई हैं ताहिर दुरानी साहब, इन्होंने और काजी ज़फरुल हक साहब ने मुझे कहा कि आप अपना स्कूल क्यों नहीं खोलते। मैंने कहा अच्छा मैं अपना स्कूल, लेकिन यही था कि मैंने कहा मैंने क्या खोलना है। लेकिन देखें ज़फरुल हक साहब ने जब रिटायरमेंट दी उसके बाद उन्होंने सस्टेन एजुकेशन फाउंडेशन को ज्वाइन कर लिया। तो मैंने कहा मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। तो उस दिन से मैंने वादा किया कि मैं गवर्नमेंट खोलूँगा, लेकिन मेरा इरादा किसी शहर में जाने का नहीं था। मैं कहता किसी गांव में खोलूँ, गांव के अंदर तालीम ज़्यादा तरीके से बच्चों को तरबियत दी जा सकती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ आपके पास आ गया हूँ, आपके गांव में हूँ। मेरा सुबह से लेकर रात तक मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मेरा कोई और कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों को इंशाल्लाह कल जो है बहुत पाकिस्तान के मेहमान होंगे, पाकिस्तान का फख्र होंगे, तो ये छोटे बच्चों को मैं तरबियत करना चाहता हूँ और इसीलिए ये प्राइमरी स्कूल यहाँ पे खोला है। एयर मार्शल नूर खान साहब की अगर बात करें कि उनके नाम पे क्यों खोला है, तो एयर मार्शल नूर खान ऐसी शख्सियत थे, 93 साल की उम्र में उनकी डेथ थी। वो उन्होंने जब भी कोई शोबा पाकिस्तान में ख़राब हो रहा था, उसको बहुत मुसीबतें थी, उसके मसाइल खड़े हो गए थे, तो हुकूमतें उनको दे देती। सबसे पहले एयरपोर्ट में जो एयर चीफ थे 65 की जंग में के हीरो थे वो। इसके बाद फिर उन्होंने PIA डूब रहा था, PIO को उस सतह पे लेके गए कि दुनिया PIA का नाम जानती थी। फिर उसके बाद उन्होंने हॉकी का जो है हॉकी को अरूज पहुँचाने के लिए उन्होंने हॉकी को अरूज तक पहुँचाया। ये करीमुल्लाह, समीउल्लाह, ये उन्हीं की पैदावार। फिर उसके बाद क्रिकेट के मैदान में जब क्रिकेट बिल्कुल क्रिकेट को देखता नहीं था, उस वक्त उन्होंने क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए काम किया। अगर मैं ये बताऊं, आज चूँकि इमरान खान सियासी बंदा है, तो इमरान खान को लाने वाला एयर मार्शल नूर खान था। क्रिकेट के मैदान में उन्होंने जो है वो उसको प्रमोट किया और वो आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम है। तो इसी तरीके से मेरे साथ वो बहुत मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा वो MLA बने तो उन्होंने तमाम अपने हलके में प्राइमरी स्कूल खोले, तो मैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे आपके पास मौजूद हूँ। मैं लंबी बात कर गया हूँ और मैं ये मैसेज चूँकि जाना चाहिए, तो मैं बहुत ही ममनून हूँ। हमारे जो है मेहमान खुसूसी, बल्कि मेहमान नहीं, वो हमारे मेहमान ही हैं, दुरानी साहब और काजी साहब सबसे पहले तशरीफ़ लाए। तो आप सब मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने आई, हमारे पास दाखिले के लिए आती हैं, जब आए मशवरे के लिए, कोई बात करने के लिए, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम इंशाअल्लाह ताला आपके पास हर वक्त मौजूद रहेंगे। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब काजी ज़फरुल हक साहब से, ये बहुत बड़ा नाम है। मैंने इनसे सीरत के सिलसिले में मैं इनका शागिर्द थी, तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का नाम सुनाए। जनाब काजी ज़फरुल हक जनाब ताहिर दुरानी साहब, सदर सस्टेन एजुकेशनल फाउंडेशन, बरादरान मलिक निसार साहब, मेरे भाई काबिल एहतराम फारूक अहमद साहब, डायरेक्टर फ्रेंड स्कूल चौधरी वकार साहब, शाहिद अवान साहब, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।
سب سے پہلے تو ہم شاہد اوان صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا. اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہیں. ویسے بھی ہم آپ کو اپنے ٹیم کا ممبر ہی سمجھتے تھے. آپ تقریباً ہمارے تمام پروگرام کا ایک عضو لاجنفک کے طور پہ آتے رہے ہیں اور ہمارا ایک اچھا تعلق ہے. میں بھی اصل انداز میں بڑا عرصہ گزار چکا ہوں اور پرانا ایک تعلق ہے. اسی بنیاد پہ ایک ادب اور احترام کا رشتہ ہے شاہد اوان صاحب سے. ہم ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں. شروع میں ہم نے جو بھی آدمی آتا تھا ہم چاہتے تھے کہ اسکول بنے, لیکن بعد میں ہمیں یہ ایکسپیرینس ہوا کہ ہر بندہ وہ بزنس مین تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو اسکول کا معاملہ ہے اس میں دیانت بھی چاہیے اور احساس ذمہ داری بھی چاہیے اور خدا خوفی بھی چاہیے. پھر ہم نے کچھ ٹیم کے جو ممبر تھے ہم نے کچھ اپنے اسکول کینسل بھی کیے. یعنی اگر ہم وہ آپ کینسل نہ کرتے تو ہمارے اسکول 30 سے زائد ہوتے ہیں. کینسل اس لیے کیے کہ ان کے ساتھ ہمارا نظریاتی معاملہ نہیں چلتا تھا. شاہد اوان صاحب کو ہم جانتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, سچ بولتے ہیں, دیانتدار ہیں, رزق حلال کماتے ہیں. جس بندے میں یہ خوبیاں ہو وہ قوم کے بچوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا, کیونکہ اگر بچوں کے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا تو اللہ ناراض ہوگا. آپ بچوں سے دھوکہ کریں گے تو آپ کا رزق حرام ہوگا. آپ بچوں سے دھوکہ کریں گے اور والدین سے دھوکہ کریں گے تو یہ بددیانتی ہوگی. تو ان خوبیوں کے بنیاد پہ ہم نے ان کو الاؤ کیا کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں اور اسکول کھولیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہ سلیبس پڑھاتے ہیں جو بگ چینز پڑھاتی ہیں, بڑے بڑے ادارے پڑھاتے ہیں. اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ 5,000 7,000 8,000 10,000 فیسز لیتے ہیں. لیکن ہم وہی تعلیم اوس فیملیز جن کی آمدن کم ہے ان کو 1,500 1,600 2,000 میں مہینے کی بنیاد پہ وہ تعلیم دیتے ہیں. پھر ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے, ڈیزرونگ ہے اور وہ فیس دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پرائیویٹ اسکول ہے آپ سرکاری اسکول میں جائیں. ہم ایسے بچوں کو بھی داخلہ دیتے ہیں اور ان کو بھی اسپانسر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچہ ہمارے پاس آئے اس کو ہم صرف 2 × 2 4 نہ سکھائیں, اس کو کوالٹی ایجوکیشن بھی دیں, اس کو اچھا انسان بھی بنائیں, اس کو اچھا مسلمان بھی بنائیں اور اس کو اچھا پاکستانی بھی بنائیں. یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم سال بھر اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے اسکولوں کو اس کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں. اور صرف گائیڈ نہیں کرتے بلکہ سال میں 2-3 دفعہ ہم اپنے اداروں کو وزٹ کرتے ہیں اور پھر ایویلویشن کرتے ہیں. ہمارے ہم ٹیچرز کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور ٹیچرز کو بھی سلیکٹ کرتے وقت ہم پورا خیال رکھتے ہیں کہ یہ صرف ڈگری والا ٹیچر ہے یا اس کے اندر کوئی صلاحیت بھی ہے. تو یہ میں جہاں شاہد اوان کو مبارکباد دے رہا ہوں, میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک ایسا اچھا ادارہ مل گیا ہے کہ آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا. آپ کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن ملے گی, اچھے انسان بنیں گے, اچھے مسلمان بنیں گے اور اچھے پاکستانی بنیں گے. اور بچے کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں پرائمری اسکول, چھوٹے اسکول کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے. اگر بچے کی بنیاد اچھی ہو جائے تو اوپر درمیانہ اسکول بھی مل جائے تو بھی گزارا چل جاتا ہے. بنیاد اچھی نہیں ہے, اوپر آپ بہت اچھا اسکول بھی لے لیں تو وہ جو ایک کمی ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو اس لحاظ سے یو آر لکی انف, آپ خوش نصیب ہیں, آپ کو ایک اچھا ادارہ مل گیا ہے اور آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق دے جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ مسلم امت کو کامیاب کرے. اور اللہ تعالیٰ جہاں ظلم ہو رہا ہے, میں فلسطین کی بات کروں گا, کشمیر کی بات کروں گا, اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے بچائے اور ظالموں کو نیست و نابود کرے. تھینک یو.
अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व फव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या परवरदिगार, हम एक नेक काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारा यहाँ मिलना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसका हमें अजर अता फरमा। या अल्लाह, हमें लोगों की खिदमत करने का इखलास अता फरमा। या अल्लाह, हमें साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह ताला, हमें कामयाब व कामरान फरमा। या अल्लाह, हमारी इस कौम के दुख दर्दों का बचाव फरमा, इनके तालीमी पसमानगी को दूर फरमा, इनकी मुआशी मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह, हमें साले हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ख्याल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ लाए और हमारे काम को कामयाब बनाया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला हम सबका हामी